আসসালামু আলাইকুম। আমি রবিউল ইসলাম। এখন এনআরসি নিয়ে অনেক রকম প্রতারণা চলছে। আর একটা ধরতে পারেন কি একটা বিজনেস চলছে, একটা বিজনেস চলছে, এনআরসি নিয়ে একটা বিজনেস স্টার্ট হয়ে গেছে। যেহেতু মানে ভয়ের বিজনেস, যেটাকে বলে না, ভয়ের বিজনেস চলছে। এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছে সরকার যে কি বলছে, সবাইকে অমুক অমুক ডকুমেন্ট লাগবে, অমুক অমুক এগ লাগবে। এর জন্য মানে বার্থ সার্টিফিকেট পুরাতন লোকের, বড় যারা পুরাতন লোক আছে তাদের, বয়স্ক লোক আছে তাদের বেশিরভাগই বার্থ সার্টিফিকেট নাই। তো বার্থ সার্টিফিকেট বানানোর জন্য যেই একটা ব্যবসা চলছে, এখন কোর্টে গেলে, বার্থ সার্টিফিকেট কোর্টে গেলে মুন্সির সাথে যোগাযোগ করলে 4,000, কেউ 5,000, কেউ 7,000 টাকা পর্যন্ত চেয়ে বসছে যে আপনারা দেন, আপনার বার্থ সার্টিফিকেট হয়ে যাবে। তো আপনাদের কাছে এটাই বলবো কি, দেখেন, ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই। এনআরসি নিয়ে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই। ব্যাপার হচ্ছে, এটা সবারই ক্ষেত্রে বলছি, হিন্দু মুসলিম ভাই সবাই পরেশান আছে, সবাই আছে। তো সবাইকে আমি বলি, এত সহজ না, কাউকে উঠিয়ে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দিবে, এত সহজ না। আমাদের কাছে অনেক রকম ডকুমেন্টস থাকে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, সব থাকে, সব আছে। এত সহজ না কেউ আমাদের। আর তাছাড়াও সুপ্রিম কোর্ট কি বলছে, আদেশ দিয়ে দিয়েছে যে আধার কার্ড, প্যান কার্ড আর রেশন কার্ডকে নাগরিকতার প্রমাণ হিসাবে মানা হবে। তো এত ভয়ের কিচ্ছু না, সবাই আস্তে সুস্তে বানাবেন, বানিয়ে নেবেন। এটা না কি বানাবেন না, নিজের ডকুমেন্টস বানানো থাকা ভালো। তাই সব বানিয়েও নেবেন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, এত সব ভয় পাওয়ার কিছু নাই যে এখনই আমাদের বানাতে হবে একদম এরকম ভয় পাওয়ার কিছু নাই। সব আস্তে সুস্তে বানান। আর কোনো কি বলছে, দালালদের টাকা সহজে দিবেন না। নিজে দেখেন, যেহেতু একটা প্রত্যেকটা জিনিসের একটা প্রসেস আছে। তো কোর্টে গিয়ে প্রথমে অ্যাফিডেভিট করতে হয়। যদি আপনি কি বলছে, ডেট অফ বার্থ অফ সার্টিফিকেট যদি বানাতে চান, কোর্টে গিয়ে প্রথমে অ্যাফিডেভিট করতে হবে। অ্যাফিডেভিট করার পর এসে যে কোনো আপনার কি বলছে লোকালয়ে যে অনলাইন করে, ওখানে অনলাইন করতে হবে। আপনাকে যে কোনো কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইন করতে হবে। অনলাইন করার পর অটোমেটিক আপনার কি বলছে, ব্লকে আপনার সার্টিফিকেট সেখানে চলে আসবে। তো কিছুদিন সময় লাগতে পারে, তার জন্য এত ঘাবড়াবার কিছু নাই, ঘাবড়াবেন না আপনারা। আর সবাই ধৈর্য ধরে কাজ করুন, এত ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই এতে। আর কি বলছে আমাদের, কি বলছে, এক্স এমএলএ, চাকুলিয়ার এক্স এমএলএ আলী ইমরান ড্রামস উর্ফে ভিক্টর, উনি কি বলছেন এই ভিডিওটা দেখেন, ভিডিওটাতে শুনুন উনি কি বলছেন। एनआरसी करने नहीं देंगे आपको बोल के रखा गया है, लेकिन आपका जो सर्वे कराया गया उस बात को समझिएगा कि किस तरह से चालाकी से आप लोगों के साथ काम किया जा रहा है। जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में आपसे आपका डिटेल्स मांगा जा रहा है, उसी को फिर एनआरसी के लिस्ट में बदल दिया जाए। ये साजिश चल रहा है। इसके खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को रोकने के लिए आज जो आप लोग परेशान हो रहे हैं ना, कि कोई जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए पंचायत में दौड़ रहे हैं, कोई एफिडेविट बनाने के लिए कोर्ट में जा रहा है। बहुत मारा है। जो और हम कह रहे थे कि एक बात समझिएगा कि आज जो आप पंचायत में जा रहे हैं या फिर आप एसडीओ ऑफिस में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं एफिडेविट बनाने के लिए, ये सब बंद कर। मीडिया के थ्रू भी हम पूरे ग्वालपोखर के साथ साथ पूरे इलाके को, चकलिया, ग्वालपोखर, सबको बोल रहे हैं कि आप लोग ये कागज बनाने के लिए जो पागल की तरह दौड़ रहे हैं, अपना काम काज छोड़ के आप लोग दौड़ जाते हैं वकील साहब के पास एफिडेविट कराने। एक एक एफिडेविट करके आपका कागज बनाने के लिए वहां पर 2,500 3,000 रुपया ले रहा है, 5,000 तक ले रहा है। वकील का खर्चा बहुत है, यहाँ बैठा हुआ 5,000 रुपया तक ले रहा है। जो भी हो, ये जो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, इस पैसे को बर्बाद करके आपको कोई फायदा नहीं। इस बात को अच्छे से समझिए। आपके पास जो दस्तावेज है, आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास आपका कहीं भी जमीन उमीन होगा उसका रजिस्ट्री का पेपर है, इसका पासपोर्ट है, उसके पास पासपोर्ट है,
और भी जो भी सरकारी नौकरी करते थे तो आपका जॉब का कार्ड है, स्कूल में बच्चा पढ़ा है तो स्कूल में जो सर्टिफिकेट होगा स्कूल का सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है। ये सब जो भी दस्तावेज है, इसके अलावा आपको और कोई दस्तावेज का जरूरत नहीं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला है, बाकायदा ऑर्डर दे दिया है कि आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन को मानना होगा, वोटर कार्ड को इलेक्शन कमीशन को मानना होगा, राशन कार्ड को इलेक्शन कमीशन को मानना होगा। ये साफ बोल दिया गया। लेकिन उस ऑर्डर को झंडा बक्सा में बंद करके बीजेपी एक बदमाशी कर रहा है कि आपको डराया जाएगा। बिहार में ये डर पैदा किया गया है, बंगाल में किया जाएगा, जहां जहां चुनाव होगा वहां ये डर पैदा करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल दिया है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इसके पास भी है, उसको इलेक्शन कमीशन को मानना। और एक बात और अच्छे से समझ लो, इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए है। मतलब इलेक्शन कमीशन को सिर्फ संविधान इतना ही इख्तियार दिया है कि वो वोटर लिस्ट में संशोधन कर सकता है, मतलब वोटर लिस्ट ठीक कर सकते हैं। उसका भी 4 तरीका है। एक कि अगर कोई मर गया उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, और दूसरा अगर कोई आदमी यहाँ शाहपुर में रहता है और वो अभी घर बना लिया है जाके विपरीत, तो आप वो शाहपुर में भी वोटर लिस्ट में है और विपरीत में भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उस आदमी का नाम किसी एक ही जगह रखना होगा। चाहे वो बोले हम विपरीत में रहेंगे तो उसका नाम विपरीत का वोटर लिस्ट में होगा, या वो बोले हम शाहपुर में रहेंगे तो उसका नाम शाहपुर का वोटर लिस्ट में होगा। कोई एक ही जगह उसका नाम होगा। और तीसरा कि अगर कोई लड़की का शादी हो गया, हमारी बेटी का शादी शाहपुर से, वो बेटी शादी करके चली गई चकलिया, तो अब चकलिया में भी उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया और यहाँ पर भी नाम है। जबकि लड़की का शादी हो गया है, लड़की चली गई है, तो उसका नाम शाहपुर का वोटर लिस्ट से कटेगा और चकलिया का वोटर लिस्ट में रहेगा। ये सब तो आप लोग समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन आपको क्या क्या कर सकता है, वो इतना ही कर सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास और करने का कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको विदेशी बोले। बात तो समझिएगा, आप लोग जो डरते हैं कि वो बांग्लादेशी घोषित करे हुए, इलेक्शन कमीशन के बाप का भी हैसियत नहीं है कि वो किसी को बांग्लादेशी, नेपाली, गुजराती, मराठी, आप जहां चाहे उनको नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को विदेशी घोषित करेगा। उसके लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। जो भी बाहर से आया है, हमारा यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो आजादी से पहले 77 से पहले बांग्लादेश से आके आज ग्वालपोखर में रह रहे हैं। तो जो लोग बांग्लादेश से ग्वालपोखर में आए हैं, उस टाइम एक रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। जो लोग रिफ्यूजी कैंप में रह के आया है, उसको रिफ्यूजी कैंप से रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट दिया गया है। उस सर्टिफिकेट के बाद उसको भारत का नागरिकता मिला है। भारत सरकार ये उसको सर्टिफिकेट देके बोला है कि तुम वो भारत में रहने के लिए नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद उसको वोटर लिस्ट, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका सारा डॉक्यूमेंट बनाया गया, तो वो भारतीय है। लेकिन अभी सरकार क्या बोलता है कि हम भारतीय हो कि नहीं उसका प्रमाण देना हो। तो हमारे पास प्रमाण क्या है? वोटर कार्ड, हमारे पास प्रमाण है आधार कार्ड, हमारे पास प्रमाण है हमारा राशन कार्ड। ये जो हमारा प्रमाण है, अब इलेक्शन कमीशन जो हमको वोटर कार्ड बना के देता है, उसी से हम वोट हुआ। 2024 में वोट हुआ लोकसभा का, 21 में विधानसभा में वोट। अब इसी कागज को बोलता है कि हम वोटर कार्ड नहीं माने। समझिएगा क्या बोल रहे हैं, हम वोटर कार्ड को नहीं माने। तो वोटर कार्ड को नहीं मानेंगे जब आप बोल रहे हैं, अगर हमारा वोटर कार्ड आप बोलते हैं कि नहीं मानेंगे, ये गलत है, तो 2024 में वोट लेके जो मोदी का सरकार बना है, वो सरकार सही कैसे हो सकती है? मेरा वोट ही गलत है, हम जाली वोटर हैं, तो जाली वोट से सरकार बना तो वो भी तो जाली होगा। अगर मेरा वोट बातिल होगा तो सरकार भी बातिल होगा। बात तो समझिएगा, लड़ाई छोटा नहीं है, लड़ाई बड़ा होगा, आपको लड़ना होगा।
आप चाहेंगे कि गली फली देके मी बच्चे निकले जा ओके देसी भाषा बोलते हैं ना ओके बोला क्या बोलते हैं इधर से निकल गए उधर पत्नी के इसको हम लोग बोलते हैं उसको देसी भाषा में क्या है फर्स्ट कट निकले जाएगा ठीक है सोचा बोलेंगे तो फर्स्ट कट निकले जा फर्स्ट कट निकलने के चक्कर में रहिएगा ना कितना फसल पे जाइएगा उतना बचिएगा इतना याद रखिए एक फर्स्ट कट नहीं मैं फर्स्ट जाइएगा इसलिए उसमें नहीं जाना तो वोटर कार्ड आपका नहीं मानेगा आधार कार्ड दिया है सरकार और मोदी सरकार आके आधार कार्ड को कंपलसरी किया मोदी सरकार आके बोला आधार कार्ड को लिंक करना होगा बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड को लिंक करना होगा पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करना होगा आपका हर चीज के साथ सब कुछ करवा दिए कौन करवाया मोदी सरकार आके करवाया आप बोलता है कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे राशन कार्ड नहीं मानेंगे कौन सा राशन कार्ड जो राशन कार्ड में देश का 80 करोड़ आदमी को आप राशन दे रहे हैं तो फिर वही राशन कार्ड को आप नहीं मानोगे तो 80 करोड़ आदमी को राशन किस बिना पड़ेगा इस बात को हम इसलिए ये सब बोल के आपको समझा रहे हैं कि आप ये बात समझ सके कि राशन कार्ड पर 80 करोड़ देशवासी को राशन मिलता है अगर वो बोलेगा हम राशन कार्ड नहीं मानते हैं तो 80 करोड़ राशन दे कैसे रहा आधार कार्ड नहीं मानते हैं तो आधार कार्ड पर पूरा देश को आप जोड़ दिए हैं उसका बैंक अकाउंट से लेके उसका जमीन का रजिस्ट्री उसका स्कूल का बच्चा का स्कूल का फीस से लेके हर चीज में आधार कार्ड जोड़ गया है आप नहीं मानेंगे तो ये सारा लिंक जो किया गया है उसमें पूरा देश जुड़ा हुआ है सबको पहले हटा नहीं कर पाएगा सर वोटर कार्ड नहीं मानेंगे तो ये जो वोटर कार्ड नहीं मानेंगे तो वोटर कार्ड से वोट हुआ है उससे सरकार बना है तो सरकार को हम क्यों मानेंगे ये एक सब गोल गोल सवाल है ये सिर्फ इसका जवाब न सरकार दे पाएगा ना इसका जवाब आपको मिलेगा बात को समझ गया तो बोले उसको समझ गया ना इसका जवाब सरकार देगा ना इसका जवाब आपको मिलेगा लेकिन सरकार इसमें आपको परेशान करेगी अब आपको परेशान होता है ना परेशानी के खिलाफ डट के खड़ा होना है ये फैसला आपको अगर आप परेशान होना चाहिएगा तो आपको परेशान करते रहेगा आप प्रधान मेंबर मुखिया नेता मंत्री सबके दरवाजे पर दौड़ते रहिए मोर बेटा नाम डाल तो भूलेंगे अरे अगर आप कागज पर जाइएगा ना एक बाप का अगर 4 बेटा है तो 4 बेटा का एक ही बाप है ना ये साबित करना मुश्किल हो जाए आप तो समझे अगर आपका 4 बेटा है तो उस 4 बेटा का जो एक ही बाप है ये भी कागज में आप साबित नहीं कर पाइएगा क्योंकि 4 बेटा का कागज में 4 बाप पड़ गया बोलिए कैसे आप मिसाल भी देते हैं मान लीजिए कोई शेख जलालुद्दीन साहब हैं जमाल भाई कोई भी लेके पहुंचते हैं शेख जलालुद्दीन नाम का एक आदमी है उसका 4 बेटा है अब अगर आप 4 बेटा का कागज देखिएगा तो 4 बेटा का कागज में स्कूल का सर्टिफिकेट में एक बेटा का नाम लिखा हुआ है बाप का जगह पर शेख जलालुद्दीन वो सही है वो तो जलालुद्दीन का बेटा हो गया अब दूसरा बेटा का नाम पे सिर्फ जलालुद्दीन लिखा हुआ तीसरा बेटा का में मोहम्मद जलालुद्दीन लिखा हुआ और चौथा बेटा में जलालुद्दीन शेख लिखा हुआ अब असली बाप कौन हुआ शेख जलालुद्दीन एक बेटा का बाप तो वो साबित हो गया बाकी 3 बेटा का बाप कौन है एक का है जलालुद्दीन एक का है मोहम्मद जलालुद्दीन एक का है जलालुद्दीन शेख आप बताइए तो एक आदमी का 4 बेटा लेकिन 4 बेटा का 4 बाप हो गया कि नहीं हुआ कि नहीं तो ये हम लोगों के सबके साथ ये गलती है इसीलिए अगर आप कागज दिखाने जाइएगा ये मोहरे छुआ है तो कोई पे तोड़ छुआ साबित कर अब बेटा बोलेगा मोहरे बाप तो तोहरे बाप से आप साबित कर आगे साबित कीजिए तो ये जो कहानी है ना इसको समझिए कागज दिखा के आप फंसते जाइए इसलिए कागज नहीं दिखाएं आप ही का गांव का आप ही का कोई भाई भतीजा बीएलओ बन के आए आपके पास आएगा तो बीएलओ आप ही का गांव का बस्ती का भाई भतीजा मास्टर है वही लोग आए तो बीएलओ को साफ बोलना होगा कि हम लोग कोई कागज नहीं दिखाए हमारा वोटर की लिस्ट में नाम है हमारा पास वोटर कार्ड है हमारा आधार कार्ड है हमारा राशन कार्ड है बस और हमारा कुछ नहीं इसमें अगर अड़ पाइएगा तो आप बच जाइए और आप जितना कागज दिखाने जाइएगा उतना परेशानी के सकते अभी जो खेल हो रहा है पंचायत में बोल रहे हैं हम ऑनलाइन में
आपका नाम फोटो बर्थ सर्टिफिकेट में चढ़ा दे रहा है, भाई आपका नाम ऑनलाइन में चढ़ा दे रहा है, आप कर रहे हैं, आज आपको कोर्ट में बोलता है एफिडेविट करवा होगे, अब वकील साहब आपसे एफिडेविट करा रहा है। एफिडेविट का मतलब क्या है? इसको बोला जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन। वकील साहब गलत बोल रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन बोला जाता है, मतलब हम खुद ही अपने बात को बोल रहे हैं और उसको हम एफिडेविट करके कोर्ट को जमा दे रहे हैं कि हम जो बोले वही सही है। इस बात को समझिएगा, हम जो बोले वही सही है, ये बोल के हम कोर्ट में जमा करते हैं, उसी को एफिडेविट बोला जाता है। तो अब हम जो बोल रहे हैं कि हम सन 1950 में पैदा हुए, फलाना तारीख को, और वो एफिडेविट बना दिया इस सन 1950 में फलाना तारीख को हम पैदा हुए, मेरे बाप का नाम ये, मेरा ठिकाना ये, सब हम दे दिया, और वो एफिडेविट बना के आपको दे दिया। वही एफिडेविट पर आए, जिन लोग जन्म सर्टिफिकेट बनाए दो, उस पर आपको तो जन्म सर्टिफिकेट भी बना दिया, उधर वकील का 5,000 रुपया ले लिया, इधर प्रधान साहब 3,000 रुपया ले लिया, आपका 8,000 रुपया गया। और जब इंक्वायरी होगा तो आपका आधार कार्ड में भी आपका जन्म डेट लिखा हुआ है, आपका राशन कार्ड में भी आपका जन्म का डेट तारीख लिखा हुआ है, आपका वोटर कार्ड में भी आपका बर्थ डेट लिखा हुआ है। जब इलेक्शन कमीशन आपके साथ बदमाशी कर रहा है, या उसी का बनाया हुआ वोटर कार्ड को वो बोलता है हम नहीं मानेंगे, उसी का सरकार का आधार कार्ड को नहीं मानेगा, सरकार का राशन कार्ड को नहीं मानेगा, तो आपका बनाया हुआ एफिडेविट को कैसे मानेगा? सवाल है कि नहीं? जब सरकार अपना ही कागज को मानने से इनकार कर रहा है आपको परेशान करने के लिए, तो आपका बनाया हुआ एफिडेविट को कैसे मानेगा? जो 5,000 रुपया दे के आप बनवा के लाए हैं, उसको कैसे मान लेगा? आप जो बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसको कैसे मानेगा? ये सब तो किसी को मानेगा नहीं, और मानने से वोटर कार्ड को ही उसको मानना होगा, आधार कार्ड को ही मानना होगा, राशन कार्ड को ही मानना होगा। इसीलिए आप लोग बेफिक्र होके अपने अपने घर में, गांव में, बस्ती में, माँ बहन सबको बता दीजिए ये जो इस्लामपुर कोर्ट में जाके वकील साहब लोग को बड़ा आदमी बना दे रहे हैं, जेरोक्स मशीन में जा जाके जेरोक्स करा के जेरोक्स वाले को बड़ा आदमी बना दे रहे हैं, मेंबर को, प्रधान को पैसा दे के बड़ा आदमी बना रहे हैं, तो किसी को पैसा दे के बड़ा आदमी बनने का जरूरत नहीं, अपना पैसा अपने पास रखिए, हम मानेंगे तो हमको चंदा दे दीजिए।